Good morning, students. Welcome to class 12 economics session. Before PMT, students, you must remember we have discussed about the various topics. We have discussed about the various agricultural issues and we were studying Indian economy. So today, bachcho, perhaps with this only we are going to proceed further. If I give you a short revision, so beforehand we have discussed about the agriculture issues, beforehand we have discussed about the agriculture topics, beforehand we have discussed about the use of HYV seeds, the effect of HYV seeds, the importance of agriculture, the importance of various aspects, so various problems in agriculture. Okay, so today bachcho we are going to discuss about some technical problems of economics or the technical problems of agriculture. What are the technical problems of the agriculture we are going to discuss about? Okay, so the technical problems are lack of irrigation facilities, wrong cropping pattern and outdated technique of production. When we come here, so technical, first of all, bachcho, what do you understand by the word technical? Technical is something which is related to the tech, which is related to the problems which the person is facing in that manner. That is said to be as the technical problem or the technical issue. Okay, so the technical problems here ki when if in a field a farmer is not able to get good watering facility or good irrigation facility, then that means what? That means that it is a problem, है ना? Because we all know that due to lack of water, no crop can yield in a good production, no farmer will get good production, isn't it? When we come to wrong cropping pattern, sometime it happens ki the farmer is sowing the seeds and the farmer is trying to get a good yield of production, लेकिन क्योंकि जो उसका पैटर्न है क्रॉप करने का, जो उसका प्रोडक्शन है, स्टाइल है, दैट इज समथिंग वो रॉन्ग हो रहा है उस फील्ड के अकॉर्डिंग, इसलिए वो रॉन्ग क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है. कई बार ऐसा होता है कि अब फॉर एग्जांपल अब आज के ज़माने में लोग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करते हैं, लेकिन अब कई बार ऐसा हो रहा है कि फार्मर के साथ मजबूरी है, फार्मर की कंपल्जन है कि वो यूज़ नहीं कर पा रहा. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है क्योंकि उसके पास रीसेंट टेक्निक्स नहीं है, उसके पास गुड प्रोडक्शन टेक्निक्स नहीं है, उसके बाद वो मेथड्स नहीं है जैसे प्रोडक्शन हो सके, इसलिए उसकी वजह से वो उसकी चीज़ लैक करती है. अब अगर कोई फार्मर है, फॉर एग्जांपल देयर आर 2 फार्मर्स, अब एक फार्मर है जो बहुत गुड क्वालिटी सीड्स का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत गुड अपडेशन का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत गुड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत गुड स्टाइल का इस्तेमाल कर रहा है, तो नेचुरली जो उसका प्रोडक्शन है वो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस पर्सन विल बी गुड. उसका रीज़न है क्योंकि द पर्सन हु इज़ यूजिंग गुड टेक्नोलॉजी, द पर्सन हु इज़ यूजिंग गुड टेक्निक्स, गुड विद गुड नॉलेज, दैट पर्सन विल ऑलवेज सक्सीड. अब ये बेसिकली कई फार्मर्स ऐसा क्यों नहीं कर पाते? ये बेसिकली कई फार्मर्स इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंस, उनके पास इतनी फाइनेंशियल सर्विसेज या इतना ज़्यादा फाइनेंस होता ही नहीं है कि वो कर सकें, इसलिए वो उस चीज़ की डिमांड करते हैं और इसलिए वो उस चीज़ से परेशान रहते हैं. तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द आउटडेटेड टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन. Okay, now coming up to the next, when we come to the next problem here, so in the next topic what we see in this next topic is कि the government of India has planned various reforms in Indian agriculture. Reforms means what? Reforms means the changes, बदलाव, कि सरकार को ऐसा लगा कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको हम इम्प्रूव तभी कर सकते हैं जब हम उसमें कुछ चेंजेस को प्रेफर करते हैं. व्हेन देयर आर वेरियस चेंजेस इन एग्रीकल्चर देन ओनली वी आर एबल टू गेट गुड प्रोडक्शन. तो द गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड वेरियस रिफॉर्म्स. फर्स्ट रिफॉर्म इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को बच्चों हम लैंड रिफॉर्म भी कहते हैं. अब जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है वो लैंड से क्यों रिलेटेड है? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप गुड प्रोडक्शन का चाहते हो, गुड टेक्निक चाहते हो, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपके पास गुड लैंड फैसिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है. लैंड रिफॉर्म, लैंड की फैसिलिटी, लैंड की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. दैट इज़ द लैंड रिफॉर्म. अब उसमें एक बात आती है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स. देखो बच्चों, जब लैंड रिफॉर्म की बात आती है तो उसमें इंटरमीडिएट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना.
क्यों? क्योंकि जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनको अबॉलिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो कई बार, या ब्रोकर्स होते हैं या जो एजेंट्स होते हैं, वो कई बार इतना अनड्यू एडवांटेज लेते हैं लोगों का कि वो फार्मर्स को चीट करते हैं। अब फार्मर्स जेन्युइनली चीट कैसे हो जाते हैं? क्योंकि दे आर नॉट एजुकेटेड। कुछ फार्मर्स हैं जो एजुकेटेड हैं तो उन्होंने इन चीज़ों को देखा है, लेकिन जो कुछ फार्मर्स हैं वो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है। अब जब वो एजुकेटेड नहीं है तो लोग उनको चीट कर लेते हैं। जब उनको लोग चीट कर लेते हैं तो वो जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया होता है वो उस बेचारे वो उससे भी जाती है। इसलिए अबॉलिशन होना ऐसे इंटरमीडिएट्स का बहुत ज़रूरी है जो कि फार्मर्स को चीट कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट आता है बच्चे, रेगुलेशन ऑफ रेंट। देखो बच्चों, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो मैं ये नहीं कह रही कि अब जिनके पास, जिन फार्मर्स के पास या जिन लोगों के पास लैंड नहीं है तो वो मजबूर हैं कि वो रेंट पे लें, लेकिन एटलीस्ट रेंट ऐसा होना चाहिए जो इजी टू पे हो। एटलीस्ट रेंट ऐसा होना चाहिए कि जो लोग आसानी से फुलफिल कर सकें या पे कर सकें, है कि नहीं? तो रेंट का रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेटेड मतलब क्या होता है? कंसोलिडेटेड मतलब होता है मिलाकर। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल एक फैमिली है ना, अब एक फैमिली में 4 भाई हैं और 1 हेक्टेयर ज़मीन है। अब चारों भाइयों ने उस 1 हेक्टेयर से अपना अपना पोर्शन ले लिया। वही ज़मीन अगर पूरे 1 हेक्टेयर को चारों भाई मेहनत कर रहे होते तो उसकी ज़्यादा ईल्ड आती, लेकिन होता क्या है कि क्यों नहीं, वो लोगों में डिवीजन हो जाता है, तो जो वो कंसोलिडेटेड फील्ड होती है वो डिवाइड हो जाती है। अब जब वो कंसोलिडेटेड फील्ड डिवाइड हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट ही नहीं आना। उसका रीज़न, क्योंकि वो जो 1 हेक्टेयर में तो फिर मेहनत करके आए, लेकिन जब इतना इतना ज़रा सा पोर्शन मिलेगा तो उसमें कितनों को आएगा, है ना? वो 4 भाई ना उस पर ढंग से फिर प्रोडक्शन कर पाएंगे, ना कोई क्रॉप यील्डिंग। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। लैंड होल्डिंग्स क्या होती हैं? लैंड होल्डिंग्स होती हैं बच्चों जो लैंड हम किसी से लेते हैं उस पर काम करने के लिए, तो वो उसका फिक्सेशन होना चाहिए। फिक्सेशन कैसे होना चाहिए? फिक्सेशन इस सीलिंग मतलब होता है फिक्स होना, कि आप अगर किसी लैंड को ले रहे हो तो उस पर जो फिक्स रेट हो, फिक्स रेंट हो, फिक्स उसका वर्क हो। ऐसे नहीं कि कोई भी किसी भी तरीके से कॉस्ट पे करने को बोलेगा या कोई किसी भी तरीके से आपको चीट करेगा। तो लैंड होल्डिंग्स पे भी फिक्सेशन होना चाहिए। कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेशन तो आप सभी को पता है। कोऑपरेशन मतलब क्या होता है? कोऑपरेशन होता है जहाँ पर हम काम मिल बांट के करते हैं, इजंट इट? दैट इज कोऑपरेशन। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग तो वो फार्मिंग होती है जहाँ पर सभी लोग मिल बांट के अपनी फार्मिंग करते हैं और सब मिलकर रहते हैं। जो प्रोडक्शन होता है वो शेयर मिलकर होता है और जो यील्ड होता है वो गुड भी होता है अपने आप में। ओके, तो दिस इज व्हाट, दिस वर द जनरल इश्यूज। ओके, नाउ व्हेन वी कम फॉर द जनरल रिफॉर्म्स, मतलब एक आम तौर पे एग्रीकल्चर में किस किस तरीके की रिफॉर्म्स और सोचे गए, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई वो वाटर की आई कि भाई, क्योंकि वाटर एक ऐसी चीज़ है जो यील्ड या प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द यील्ड और प्रोडक्शन ऑफ द फील्ड और इन द प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप। तो अब ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? अब ये इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो एक्सपेंशन है इरिगेशन फैसिलिटी का वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब आप उसमें उसका वर्क कर पाओगे। अगर इरिगेशन, अगर जो वाटर फैसिलिटीज़ हैं वो हमको चाहिए हैं, अगर जो वाटर फैसिलिटीज़ हैं वो हमको चाहिए और या जो वाटर फैसिलिटीज़ हैं वो गुड होंगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारा सर्विस होगा, जो हमारा काम होगा वो अपने आप गुड होगा। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट फैसिलिटीज़। फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि कुछ फार्मर्स होते हैं वो उनको क्रेडिट की फैसिलिटी चाहिए होती है। क्रेडिट मतलब क्या होता है? क्रेडिट की फैसिलिटी मतलब होता है कि कई बार कुछ फार्मर्स होते हैं जो फाइनेंस या पैसे की वजह से काम नहीं कर पाते या जो पैसों की वजह से पीछे रह जाते हैं या अपने वो बिज़नेस को बढ़ा नहीं पाते। लेकिन तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। क्रेडिट फैसिलिटीज़ मतलब क्या हुआ? क्रेडिट फैसिलिटीज़ का मतलब हुआ कि जहाँ पर आप गुड फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर पाओ ताकि फार्मर अपने काम को बढ़ा पाए। उसके बाद आता है मार्केट रेगुलेशन। मार्केट की अलग अलग तरीके से रेगुलेशन करना है। अलग अलग तरीके से रेगुलेशन हम कैसे कर सकते हैं कि जो मार्केट है उसको किस तरीके से आप अच्छे तरीके से चला पाओ, उसको हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स।
ओके, सपोर्टिव प्राइस पॉलिसी। अब प्राइस पॉलिसी की बात आती है, प्राइस पॉलिसी का मतलब होता है कि जब हम प्राइस को इस कॉस्ट पे रखते हैं, या जो प्राइस हमारा ऐसा हो जिससे हर कोई ईजिली सामान बेच सके, फार्मर भी ऐसा प्राइस रखे कि जहाँ पर वो बेचकर कुछ अपने आप में भी प्रॉफिट को कमा पाए, दैट इज सेड टू बी एज दी प्राइस पॉलिसी, है ना। तो दीज आर दी सर्टेन रिफॉर्म्स विच नीड टू बी इम्प्रूव्ड ऑन एग्रीकल्चर, एंड आई होप दैट इफ एग्रीकल्चर कैन इम्प्रूव ओनली थ्रू दीज मेजर्स ओनली। देन कम्स टू द टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स में सबसे ज़्यादा बात करी गई HYV सीड्स की। HYV सीड्स की बात क्यों है? क्योंकि HYV मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का मतलब क्या है कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को जब हम इम्प्रूव करते हैं, जब हम गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर आता है केमिकल फर्टिलाइजर्स या इंसेक्टिसाइड्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स या इंसेक्टिसाइड्स क्या करने हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स या इंसेक्टिसाइड्स हम तभी काम कर सकते हैं जब गुड क्वालिटी हमें चाहिए अपने प्रोडक्शन में। तो आई होप स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक विच आई हैव डिस्कस्ड टुडे. Please listen to the video very carefully and prepare all the notes concerned with it. Okay, thank you बच्चों. Stay home, stay safe and stay healthy. All the best बच्चों.